Dear students, today we will discuss about land reforms in India. These land reforms that initiated in mid-50s of 20th century, that is after independence, and the objectives of these land reforms in India were, पहले हम इसके objectives पढ़ेंगे. पहला objective था, the first objective of land reforms in India was abolition of intermediaries between state and cultivator. पहला जो ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म का वो था खत्म करना था इंटरमीडिएरीज बिटवीन स्टेट एंड कल्टिवेटर, बिटवीन गवर्नमेंट एंड कल्टिवेटर, the actual tiller of the land. Intermediaries, these were individuals who worked between government and the cultivator, the actual tiller of the land, who has done cropping on the land, and he was supposed to give some share of the agriculture produce towards the government, means exploitation of the cultivator, और उसको खत्म करना था. And this was prevailing during colonial rule, the British government. जैसे कि जिम्मेदारी सिस्टम था, रोयटवारी सिस्टम था. And second objective of land reforms in India was conferring rights of ownership on the actual tiller. The tiller is a person who sows the seeds, then harvests the crops, and he has to share, he has to supply some agriculture produce to the land owner. And in land reforms, the objective was to give them rights of ownership. उनको हुकूक देना था, वालकाना हुकूक एक्चुअल टीलर को, because they were exploited. And third objective was consolidation of land holding. Consolidation of land holding. जो फ्रेगमेंटेड लैंड था उनको कंसोलिडेट करना था ताकि बिग फार्मर्स कैन बी क्रिएटेड. और एक और ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म्स का, वो ये था कि डिक्रीज करना था inequality in distribution of land, to decrease
or to minimize inequality in distribution of land. The extra land from the big farmers will be taken and then distributed to the poor farmers, to those landless citizens. उससे कम होगा जो इनइक्वालिटी था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जो बिग फार्मर्स थे और जो स्मॉल फार्मर्स थे। जो बिग फार्मर्स से जो एक्स्ट्रा लैंड था उनसे वो लेना था ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए स्मॉल फार्मर्स के दरमियान। उससे जो इनइक्वालिटी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में वो कम हो जाए। एंड व्हाट वर द इम्पोर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स। अब हम एक्सप्लेन करेंगे जो इम्पोर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स थे जिनका ये ऑब्जेक्टिव था। इम्पोर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स, abolition of zimindari system, abolition of zimindari system, जो बाद में परमानेंट सेटलमेंट बना। परमानेंट सेटलमेंट during British government, during colonial rule, this was prevailing. In 1772, that is in 18th century, the Governor General of India was Warren Hastings. This was the Governor General of India during British rule, during British India, and he leased the right to collect the revenues to highest bidders for 5 years. Collection of revenue, आमदनी जिसको हम कहते हैं, ये था for 5 years. Initially it was for 5 years. After that it became permanent settlement. In 1793 it became permanent settlement system. Permanent settlement system. एक इंडिविजुअल अपॉइंट किया गया था जिसका काम था टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, फ्रॉम द लैंड ओनर्स, जो उनको देना था गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इस तरह से जो लैंड ओनर्स थे, जो कल्टिवेटर्स थे, वो एक्सप्लॉइट किए गए और लैंड रिफॉर्म्स में इसको ख़त्म किया गया। दिस एक्सप्लॉयटेशन वाज एंडेड इन लैंड रिफॉर्म्स। And at the time of independence, at the time of independence, 40% of land was under this system. At the time of independence, when British government left the India, and the land under this system was about 40%, and this was abolished. इसको ख़त्म किया गया।
जो कल्टिवेटर्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, जो एक्चुअल टेलर्स थे, उनको पूरा हुकूक दिया गया, उनसे कोई शेयर नहीं लिया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और जो फर्स्ट लॉ पास हुआ था अंडर दिस सिस्टम फॉर द एबॉलिशन ऑफ जमींदार सिस्टम, और जो परमानेंट सेटलमेंट बन गया 1793 में, फर्स्ट लॉ वाज पास्ड बाय स्टेट बिहार and then UP in 1950. Then other states also passed the law to abolish this zamindari system, which was exploiting the farmers of India. उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था जिसको हम कहते हैं टीनेंसी रिफॉर्म्स। टीनेंसी रिफॉर्म्स Tenancy reforms. It was important reform in land reform taken by government of India, and under this system the owner of land gives his land on lease to cultivator, जिसको हम टीनेंट कहते हैं, इसलिए इसको हम टीनेंसी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इस सिस्टम में जो मालिक था ज़मीन का, वो अपना लैंड जो उसके पास होता था लीज पे देता था, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देता था टेनेंट को, जिसको हम कल्टिवेटर कहते हैं, और फिर उससे कुछ शेयर लेता था, जैसे कि रेंट होता था या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उसका कुछ शेयर लेता था। और इसको भी अमेंडमेंट हुआ। इसमें जो मेन गोल्स थे, नंबर 1 वाज maximum limit of rent was maximum limit of rent, तो रेंट जिसको हम किराया कहते हैं, was between, it was fixed between 1/3 and 1/4 of total produce, टेनेंसी रिफॉर्म इसमें जो था, पहले हम इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा बहुत। इसमें जो ओनर ऑफ लैंड था, जो मालिक था ज़मीन का, वो लैंड को लीज पे देता था कल्टीवेटर को, टेनेंट को, लैंड ऑन लीज टू कल्टीवेटर, जिसको हम टेनेंट भी कहते हैं, इसलिए इसको हम टेनेंसी रिफॉर्म्स कहते हैं। इसका जो पहला गोल था वो था फिक्स करना था लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेंट जो देना पड़ता था कल्टीवेटर को टू द ओनर ऑफ लैंड, वो फिक्स किया गया था 1/3 to 1/4 of the total produce. Total produce means total production of crops such as wheat, rice or cash crops such as jute. इसी तरह एक और गोल था इसका टेनेंसी रिफॉर्म्स का, वो था tenants cannot be evicted from land illegally. Tenants cannot be evicted from land illegally. जो टेनेंट्स थे, कल्टीवेटर्स थे, जो काम करते थे ज़मीन पे, फसल उगाते थे, जो लैंड उनको मिलती थी लैंड ओनर की तरफ से, उनको ये हक दिया गया कि जो लैंड ओनर था वो उनको नहीं निकाल सकता था फ्रॉम द यूज ऑफ लैंड इलीगली, गैर कानूनी तौर पर वो उनसे उनका राइट्स नहीं छीन सकता था लैंड ओनर। इस तरह जो टेनेंट्स था उनको
फ़ायदा मिला, उनको हुकूक दिए गए, उनकी एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म किया गया। And in case of calamities, जो tenants थे, they were exempted from rent. In calamities, tenants, the cultivators, were exempted from paying rent to the landowner. जैसे कि बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो नहीं होगा, या कोई और कैलेमिटी होगा जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगी या कम होगी, उस सूरत में जो टेनेंट था, एक्चुअल टिलर था, कल्टीवेटर था, उनको छूट दी गई कि वो रेंट पे नहीं करेंगे, उनको उस सूरत में रेंट नहीं देना पड़ा। ये भी एक हुकूक मिला, एक रिफॉर्म हुआ टेनेंट्स के बारे में। इसी तरह if tenants default in respect of paying rent, then the landowner cannot get his tools, cattle or standing crops attached. In case of डिफॉल्ट, जैसे कि उनको रेंट देना पड़ता था लैंड ओनर को, अगर टेनेंट या जिसको हम कहते हैं कल्टीवेटर, अगर उसने पे नहीं किया रेंट, डिफॉल्टर बन गया, द लैंड ओनर, जो मालिक था ज़मीन का, वो उनसे नहीं छीन सकता था उनके टूल्स, एग्रीकल्चरल टूल्स, cattle or standing crop. Landowner cannot get his tools. उनके बदले वो उसके टूल जो थे, एग्रीकल्चर टूल नहीं ले सकते थे, और जो उनके पास कैटल हुआ करता है, कैटल मवेशी, वो भी नहीं छीन सकते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय टेनेंट, बाय कल्टीवेटर। और जो स्टैंडिंग क्रॉप, जो फसल होगा, वो भी नहीं ले सकता था टेनेंट से। ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था लैंड रिफॉर्म्स में, जिसका टाइटल था टेनेंस रिफॉर्म्स। एक और इम्पोर्टेंट रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया है, वो था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेट करना। जैसे कि फ्रेगमेंटेड लैंड था, स्कैटर्ड लैंड था, उनको कंसोलिडेट किया गया ताकि बिग फार्मर्स जनरेट होंगे, क्रिएट होंगे, टू मेक बिग फार्मर्स। जो फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे ज़मीन का टुकड़े जो थे, उनको एक ही को दिया गया ताकि बिग फार्मर्स क्रिएट होंगे, फ्रेगमेंटेड, और जिसको हम कहते हैं स्कैटर्ड लैंड। इनको कंसोलिडेट किया गया ताकि बिग फार्मर्स जनरेट होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था। One more important reform taken by government of India was ceiling on land holding. Ceiling on land holding, कि हर एक लैंड ओनर, हर एक फार्मर
जितना चाहे उतना लैंड रख सके, इस पे भी कदगन लगाई गई। जैसा कि जो मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड था दैट अ पर्सन कैन ओन, ये था 18 acres of wetland for a family of 5 persons can have wetland means irrigated land, जिसमें पानी का फैसिलिटी हो, अप टू 18 acres, उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता है। अगर उसके पास उससे ज़्यादा होगा तो वो उसको गवर्नमेंट को देना था, ताकि गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्मॉल फार्मर्स में, लैंडलेस सिटीजन्स में। इसी तरह जो अनइरिगेटेड या जिसको हम कहते हैं बैरन लैंड, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट था वो था 54 acres। ACRES acres। अगर एक फैमिली में 5 पर्सन है तो वो वेटलैंड कितना पॉजेस कर सकते थे, 18 acres इरिगेटेड लैंड, और जो अनइरिगेटेड लैंड था वो था 54 acres, उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते थे। इसी तरह एक और रिफॉर्म था कोऑपरेटिव फार्मिंग। Cooperative farming, this is a method in which cultivation is taken jointly with other farmers and the original farmer remains the owner of land। जैसे कि अगर एक के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होगा, फिर जो उसके आसपास रहते हैं वो उस लैंड पे जॉइंटली काम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स, उसके बाद शेयर करते हैं आपस में वो क्रॉप्स, लेकिन जो राइट्स है लैंड का वो उसी के पास रहता है जो ओनर ऑफ लैंड हुआ करता है। इससे जो अदर फार्मर्स थे उनको भी फ़ायदा मिलता था, क्योंकि उनको शेयर मिलता था उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। इस तरह से ये लैंड रिफॉर्म्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है ड्यूरिंग मिड 50s of 20th century, that is after the independence। I hope you have remembered all these important pointers of land reforms. Thanks.